what is community empowerment? I would like to say that today is 26th November, Constitution Day. So my best wishes to all of you, my fellow countrymen, women, on this wonderful day. The Constitution is the basis of everything that is supposed to happen in this country. So if the preamble of the Constitution says that each and every Indian is entitled to justice, liberty, equality, fraternity, and equality of opportunity in human rights, then the day we get all that for each and every Indian, that would be community empowerment for me. And ma'am, you brought out this very beautiful thing that we are actually having this conversation on the Constitution Day. And now I would like to maybe ask specific questions related to your spheres of work. Baraka ma'am, you've had a history of writing for art, music, culture, lifestyle. And now you are into running an NGO for sports. So ma'am, can you and do you marry the two? And can there be a society that is culturally rich and still socially poor? We are not talking about financially. See, when we say culture, what is a culture? What is a cultured society? Where every form, every art form gets some kind of a space. So when you are saying that how I merge it with social work. So first of all, it's very, very simple. Because when you go to cover these cultural events, they are mostly in aid of something or the other. So you immediately know that there is a purpose behind it, So in aid of some education, like many NGOs, they do cultural events as fundraisers for them. So, at no space, and they show you those EVs, and somebody is trying to finance a school, somebody is trying to finance build a hospital, and they are trying to raise funds. So culture is absolutely woven with the social service, I would say that, first of all. And how do I merge it? Because see, in my career as a journalist, I came across so many people, and however accomplished they were, what made them great, I realized, was their concern for the society. So a culturally rich society is incomplete until it's socially rich, and that's how Absolutely. No, thank you for this input, and it's coming right from the person who has got an authority on it. And so, ma'am, there also this aspect where socially relevant work can be done through the arts, through music, and through drama, or like something like a Nukkad Natak or something. So using the art forms to bring about social change can be another perspective in this aspect. What would you say? So see, what happens is, if I go for an exhibition of a painting, so I see that an artist has taken up a particular theme, which works for the society. Maybe if the headlines have said that there is abuse of women, you can see a reflection of it in the paintings. Sometimes, a musician devotes her entire recital to a cause of gender equality. So that way, they are, socially empowering through their performance. Nukkad Nataks, of course, have always been a very, very effective aid, whether it is water conservation, whether it is clean your society, your city, any issue is very, very ably conveyed through a Nukkad Natak or a theatre. So, of course, across the board, all art forms basically work to promote a social cause. There is no doubt about it. That's a very beautiful perspective, which we would never see otherwise. So, and the next question I would direct towards you, Aartiji. Why do we see, what do you feel is the reason why in India there's a social change with a topography change? Why are things not the same in
Punjab or Haryana where you work as they are in, for example, Maharashtra, via people or the rural or the communities in Maharashtra grappling with different issues than are those in the north or in the south? Why is topography and social situations so closely woven? What is your theory on that? So I think, thank you so much for this relevant question. And I think, first of all, we need to understand why civil society and the CBOs came into this structure, the government structure, because government is enough to do any kind of growth and development. But I think if we see our country's population, right now we are 1407 million. And if we see the frontline workers number, it's 6.6 million. So it's like demand size is much, much more than the supply side. So I think this is the one of the way, although we have many progressive laws, many progressive schemes, everything is here in India, but if we see the implementation level, it's way behind. So I think if I talk about the Haryana or where Breakthrough is working right now, we are working in 6 states. I lead Haryana program. So I have seen many changes even within the 5 years. So I think if we aware the community, if we really invest on them, they take their actions on their own. So we don't need to teach them कि कैसे जाना है आपको, कैसे करके सरकार से demand करना है. They know everything. Nowadays, women are participating in Gram Sabhas, which was not earlier in Haryana. Even in Haryana, this is the first year where women have been part of PRI members, the Panchayati Raj institutions members. So from last 1.5 years, men were on a strike. Ex-sarpanchs were on strike that women cannot be part of it. But nowadays they won and they are becoming part of many kind of decision making within the villages, within the Gram Panchayats. Although we all know that in rural context at grassroots level there are so many challenges कि महिलाएं नहीं जा सकती, उनके behalf में पति उनका decision लेते हैं. But still nowadays they are going out from their houses, they are going to the Sarpanch Bhavan and they are taking decisions with the main punch. So I think I have seen many changes. Also, I would like to add one more point that in Breakthrough, we do evaluations of our work twice in a year. So we have seen that nowadays, 1.9 years, this is the increase of marriageable age. So nowadays, girls are negotiating for their higher education, which is very connected to the marriage with their parents. So this was not earlier. Nowadays, I have seen it when I go to the classrooms in the schools, boys always say कि हमें भी घर का काम करना चाहिए, which was not earlier. And if I talk about the Haryana, I talk about the Jharkhand, which is typically very patriarchal states. So these kind of changes we see day by day, and even our evaluations also shows this. Thank you so much. I'm so happy. I'm so glad that you actually, when I asked you why is there a difference, you said there's no difference now. They are ready and it's happening. So it's already started, and how. Ma'am, the next question I would like to direct to you, Paramita ma'am. You've done so many fellowships based on how. On leadership values and how to lead a social change. So, how important is a leader in running or spearheading an NGO? Okay. Well, in some way, the leader is very important. In other ways, the leader is not important at all. Because finally, the leadership is yes, the most important thing is to be able to nurture new generations of leadership. And especially nurturing leadership from the community. So slowly, actually, the best leader is the one who slowly becomes invisible. एंड जिसको लोग कहते हैं कि अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, अभी हम कर लेंगे. अभी यहाँ तक आपने हमको जितना समझाया या जो हमने देखा, अब हम समझ गए हैं, बाकी काम हम कर लेंगे. दैट इज़ आई थिंक द बेस्ट, व्हाट शुड आई से, द बेस्ट
no other fellowship award is as beautiful as when the community or the women or the youth, they come and say, ab zarurat nahi hai tai, ab hum kar lenge. That is the biggest award that I think a leader can get. And I think I'd like to repeat here that she's a recipient of the Ashoka Fellowship, the Yale Fellowship, and the Eisenhower Fellowship. And coming from her, she says the biggest certificate is when the community says, we are empowered, endpoint achieved. Yes. So my next question would be like related to this to all of you. I would like you all to please answer this. Isn't it paradox that we need leaders to do a service, whereas it's a social service and we need leaders? It's a paradox, and yet we do. So what do you like to say for that? See, the two ladies sitting next to me are extremely distinguished, you know. They are the social reformers. I have just been reporting, you know, on people like them. So what I have seen is कि जब ये लोग जाते हैं, you know, I'll switch to Hindi now. I think we connect better. हाँ. So आप देखिए कि जिन रीजन्स में पारोमिता जी चंद्रपुर में काम करती हैं, आरती हरियाणा के विलेजेस में काम करती हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पर कोई सेंस ही नहीं होता है कि जो जिन लोगों के साथ ये लोग काम करती हैं वो इतने मजलूम, दे आर सो डाउन ट्रॉडन, इफ़ आई कैन यूज़ दैट वर्ड, यू नो, वो इतने ज़्यादा मजलूम होते हैं, दे डोंट नो हाउ टू हेल्प देमसेल्व्स. सो इन दैट case, you need somebody to go there and tell them that these are your rights. You have to stand up for your rights. You have to speak up for yourself. उनको लीडर बनाने के लिए एक लीडर की ज़रूरत होती है जो उनको वो रास्ता दिखाता है. लाइक आई हैव सीन, यू नो, आई हैव डन अ बुक, यू नो, वेयर आई हैव मेंशन्ड पीपल लाइक मोहन भाई. आप लोग नागपुर में रहते हैं एंड आई नो यू हैव नॉट हर्ड ऑफ मोहन भाई. Please read about him. And if you read about Dr. Gogulwar, so they were people who went right into the remote of Gadchiroli regions and they told the tribals over there कि सरकार ने आपके लिए ये schemes रखी हैं, इन schemes को उठाइए और आपको सरकार पैसा देगी. So that is how why they need those leaders, you know, otherwise they won't know what it is all about. एक्चुअली जो मैम ने बोला एक्चुअली वही होता है. अगर मैं हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में आई कैन गिव वन ऑफ द एग्जांपल विच इज़ वेरी रिलेवेंट एंड विच इज़ वेरी मतलब हियर एंड नाउ में हुआ. कैन यू इमेजिन कि लड़कियों का कॉलेज जाना कैन बी वन ऑफ द टैबू इन द विलेज. कि अगर लड़की जाएगी कॉलेज में, स्कूल तो सिर्फ गांव में होता है, गांव के बाद जैसे ही वो कॉलेज जाना शुरू करेगी तो उनके पेरेंट्स को अलग कर दिया जाता है कि तुम्हारी बेटी तो अब लड़कों के साथ बात करेगी, उसका अलग कनेक्शन हो जाएगा. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द विलेज लेवल इन देयर कम्युनिटी. दैट्स वाई दे डोंट इनरोल देयर डॉटर्स इन द कॉलेजेस. सो इसमें अगर मैं एक कलेक्टिवाइजेशन का एग्जांपल दूं कि लड़कियों ने खुद, यूथ गर्ल्स ने खुद जाके, जब हमने अवेयर किया, ब्रेक थ्रू ने अवेयर किया कि नहीं आपका कॉलेज जाना कितना इम्पॉर्टेंट है, और उन्होंने एक ग्रुप बनाया लड़कियों का और उसके बाद जाके उन्होंने एक पब्लिक हियरिंग ऑर्गेनाइज किया वेयर एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट के लोग आए. एंड देन within 2 to 3 months they have provided free bus services for the Devipur village. There is a village in Karnal block in Haryana, Karnal district, and Devipur village का नाम है. तो आज के दिन में वहाँ पे ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा गर्ल्स जा रही हैं कॉलेज, पानीपत, सोनीपत एंड करनाल में. सो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर, मतलब इफ़ वी सी द कलेक्टिवाइजेशन हाउ वर्क्स. एंड बहुत अलग अलग लेवल के इश्यूज है जो मैम ने अभी बोला. एक्चुअली वैसा ही है कि उन्हें पता ही नहीं होता है. दे थिंक दैट दिस इज़ द रियल लाइफ एंड दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपोजर. दे डोंट know their rights, their entitlements, how they can go to raise their demands. But मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा भी उनके साथ समय बिताया जाए, समय इन्वेस्ट किया जाए, they can be the leaders. Thank you. मुझे दो बातें कहनी है. एक तो मुझे ऐसा लगता है कि लीडरशिप जो है
मेरे दिमाग में उतनी नहीं थी। मैंने जो भी काम किया है वो मेरी ज़रूरत थी। मुझे कुछ बातें सहन ही नहीं होता था, इसलिए मैंने काम किया। And at this point, I would like to say, ma'am has worked on prohibition, on Darubandi and हाँ, yeah, लाइक lot of that. दारूबंदी इश्यूज के लिए नहीं, Issues, पर yeah. ये बातें कि भाई अगर अन्याय हो रहा है, हमारे आँख के सामने हो रहा है, हम कुछ नहीं बोल रहे, ऐसा क्यों? अगर किसी के नाम पे 7/12 उसका पट्टा है और ज़मीन कोई और लेके चला गया, ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? जब ये नहीं होना चाहिए, हमारे कानून में तो ये नहीं लिखा है, हमारे संविधान में नहीं लिखा है, तो ऐसा अगर हो रहा है तो मेरी 20-25 साल पहले जब मैं छोटी थी तो मेरी ये मानसिकता थी। लीडरशिप मेरी मानसिकता बिल्कुल नहीं थी। मेरे सवाल ये थे, ऐसे थे कि भाई ऐसा क्यों, कॉलेज है क्यों नहीं जाएंगे भाई, तो ज़रूरत मेरी थी और आज भी मुझे लगता है कि ज़रूरत मेरी ही है। लोगों को मेरी उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी मुझे लोगों की ज़रूरत है। मुझे अच्छा लगता है। हम दूसरी बात यह है जिससे मैं आपको ये करूँगी, क्योंकि नागपुर में हैं, शहर में हैं, समाज बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जिस समुदाय की हम जैसे कल्पना करते हैं पिछड़े हैं, अभी उतना नहीं है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ गई है, सोशल मीडिया आ गई है, डेमोक्रेटाइज हो रहा है सब कुछ, पूरा पब्लिक स्पेस डेमोक्रेटाइज हो रहा है। तो आज मैं ये बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ, मैं खुद अपनी आँखों के सामने मैंने इस बदलाव को देखा है कि अभी मैं 3rd या 4th जनरेशन के साथ में काम कर रही हूँ, तो जिनके दादा या नाना के साथ मैंने काम किया है, उसके बाद जो मैं चेंजेस देख रही हूँ, तो ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर आते आते वो लोग तो बिल्कुल खड़े हो गए। वो तो बिल्कुल मतलब फौलाद है, उनको कहाँ ज़रूरत, मतलब कंपेयर टू व्हाट their grandparents were and the people I work with, and when I started out, when I see their grandchildren today, I cannot tell you कि what a change there is in the rural areas, the kind of aspirations that people have, the youth have, the challenges before our country and our government, how to meet their aspirations. That is the challenge. I think बहुत ही सुंदरता से all my panelists, they brought out this beautiful thing कि सेवा की भाव से हम जाते हैं, लीडर्स वो बना देते हैं. It's not that no one goes as a leader. Everyone wants to serve and do what they feel is ethically right, and then it just happens because there are very few among us who want to go out and reach out and do it. So then they automatically become leaders. And with ma'am, she's done it for 4 generations. She's seeing the effect in front of her. There are some who are starting out the different phases in different parts of the country. और वो जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट के लिए चैलेंज हो गया है, पर गवर्नमेंट का ये नहीं कुछ कर पाते कुछ चीज़ें, जैसे कि अवेयरनेस दैट यू हैव दीज राइट्स, द गवर्नमेंट गिव दिस राइट्स बट दे कुड नॉट इन्फिल्ट्रेट और पेनिट्रेट द सोसाइटी टू द स्मॉलेस्ट लेवल की आपके ये राइट्स हैं. तब जाके एनजीओ का role became clearer, and I think they became the agents of change. So why do you think an NGO has a greater penetrability than the government themselves? See, as I was telling you, Pooja, I have done this book, where I have written about all these 7 stories are there about people who are working in Melghat and Gadchiroli, Chandrapur regions, the Amtes, the Satavs, the Koles and all. तो आप जो ये सवाल कह रही हैं, तो डॉक्टर रविंद्र कोले मेलघाट में काम करते हैं, बहरागढ़ में. तो जब वो वहाँ गए थे आज से 30-35 साल पहले, ये सारी 7 स्टोरीज ऐसी हैं जो पिछले 30 साल में इन NGOs ने वहाँ पर काम किया है. तो डॉक्टर कोले, when he finished his MBBS from the Government Medical College, he said कि उन्होंने कोई स्पेनिश बुक पढ़ी थी, and he said, I am looking for a village which is 40 किलोमीटर्स जिसके आसपास कोई सड़क ना हो और कोई अस्पताल ना हो. हाँ, तो ऐसी गांव इतना रिमोट गांव वो ढूंढ रहे थे. तो वो क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ सरकार पहुंची नहीं है, गवर्नमेंट इज नॉट देयर एट ऑल, सो आई विल गो एंड वर्क ओवर देयर. 10, 15, 20 साल में जब
वो कहते हैं कि हमारे जो मेडिकल प्रोफेसर्स थे उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम गवर्नमेंट की जॉब्स को रेप्लिकेट करना नहीं है, तुम्हारा काम वहाँ पर एक बदलाव लाने का है। तो गवर्नमेंट का काम कैसे रेप्लिकेट होता है? वो कहते हैं कि जब जैसे वैक्सीनेशन इज़ द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट। तो कह रहे हैं कि हमने ये बताया सरकार को कि यहाँ वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोलो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खुल गए। उसके बाद जब 108 एम्बुलेंस शुरू हुआ तो फिर उन्होंने कहा हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है। बट ये बदलाव लाने के लिए NGO लगता है। जैसे आप तो जानती हैं सर्च के लिए, सातव्स हैं मैल न्यूट्रिशन के लिए उन्होंने काम किया। तो सरकार नहीं कर पाती, सरकार को बताने के लिए कि वहाँ तक पहुँचो भाई, वहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है या ये हो रहा है, तब सरकार को जगाने के लिए NGOs आते हैं और कितना बढ़िया काम करते हैं। Wow, it's a beautiful perspective. और आरती मैम, you brought another perspective when I was speaking to her कि गवर्नमेंट ने क्या योजनाएं या क्या राइट्स दे चुके हैं, सबको पता है, पर उनका माइंडसेट बदलने के लिए वहाँ वो जाते हैं और कलेक्टिविज्म से कैसे लड़कियों ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया फॉर हायर स्टडीज। शी विल टेल यू दैट स्टोरी। मैम प्लीज थोड़ा सा माइंडसेट चेंज, एंड मैडम इज वर्किंग फॉर माइंडसेट चेंज। जी, सो अगर ब्रेक थ्रू की बात करें हम लोगों का, जो हमारा टैगलाइन ही है, जो विज़न है हमारा, वो हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस फ्री कोई भी कम्युनिटी और विलेज। तो इसके लिए क्या करना होता है कि जैसे ही हम गांव लेवल में जाते हैं, और मोस्टली वी वर्क एट रूरल इंडिया, और कुछ पार्ट हम दिल्ली का जो अर्बन एरियाज़ में भी काम करते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप भी बोल रहे थे, मैम भी बोल रही थी कि बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारे उनके लॉज हैं जिनको वो अवेल कर सकते हैं, बट वो जानते हैं, मुझे पता है कि मैं इनहेरिट कर सकती हूँ अपनी प्रॉपर्टी, लेकिन मुझे नहीं करना है ड्यू टू नॉर्म्स। दैट्स वाई वी वर्क ऑन नॉर्म चेंज। तो जब तक इसके ऊपर काम नहीं होगा, हम लोगों को ये बिलीव करते हैं हम लोग, और हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कि तब तक वो चेंज जो हम देखना चाहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस फ्री, वो नहीं आएगा। क्योंकि फिर सोसाइटी में जो है वुमेन और अदर जेंडर्स को लेके डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस होता ही रहेगा। तो अभी जैसे जो मैंने एग्जांपल भी दिया कि लड़कियां आज के दिन में अगर वो नेगोशिएट कर रही हैं अपने पेरेंट्स से दैट वी वांट टू गो टू कॉलेज, वी वांट टू डू जॉब्स, उसमें उनका ऐसा नहीं कि मैं आज गई स्कूल से और मैंने बोला कि 12th में मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा और प्लीज़ मुझे कॉलेज में एडमिशन करा दो, और पेरेंट्स मान गए। ऐसा नहीं होता है। उनको बहुत तरीके से मनाना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स के भी बहुत सारे फियर्स हैं कि अगर बेटी 18 साल की हो गई और उसके बाद अगर वो कॉलेज जाना शुरू की, रास्ते में उसके साथ कुछ हरासमेंट हुआ, तो मेरी बेटी से कौन शादी करेगा। सेकेंडली, मेरा फाइनेंशियल जो है कंडीशन वो वैसा नहीं है कि मैं कॉलेज में इनरोल कराऊँ। अगेन वी अवेयर देम कि दिस काइंड ऑफ चीज़ें हैं जिनसे आपको फ्री ऑफ एजुकेशन मिल सकता है कॉलेज में भी। तो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है स्कूल्स में। आज के दिन में हरियाणा में इस बार अगर 12th का रिज़ल्ट भी देखें तो वहाँ पे लड़कियों का परसेंटेज ज़्यादा अच्छा आया है बॉयज़ के कंपेयर में, और स्पेशली साइंस में। जबकि आप देखोगे स्कूल्स में अगर थीम जब वो सेलेक्ट करते हैं 11th में, तो मोस्टली गर्ल्स आर इन आर्ट्स। क्यों? क्योंकि टीचर्स आर ऑल्सो बायस्ड कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो बाद में रोटियां ही बनानी है, तुम क्या करोगी। तो आज के दिन में लड़कियां कलेक्टिव होके, ताकि मैं अगर 10 लड़कियों के साथ हूँ तो हम 10 लड़कियां अपने पेरेंट्स को एक साथ मनाएंगे। इवन दूसरी लड़की भी जाके एक दूसरी लड़की के घर पे बोल रही है कि मैं अगर आप अपनी बेटी को घर कॉलेज जाने दोगे तो मैं भी इसके साथ हूँ। इस तरीके की चीज़ें कर रही हैं वो। अलग अलग तरीके का, जो अभी मैम बोल रही थी कि बहुत सारा अवेयरनेस उनको आया है टेक्नोलॉजी से भी। आज के दिन में वो यूट्यूब देख के भी समझ पा रही हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखना होता है। ये एप्लीकेशन हम जुडिशरी डिपार्टमेंट में कैसे देंगे, ट्रांसपोर्ट में कैसे देंगे, उसका फॉलोअप कैसे करेंगे, ताकि मेरे पास फ्री सारी चीज़ें हो, तो मेरे पेरेंट्स को ये मौका ना मिले कि पैसा नहीं है। तो उनके पास सिर्फ एक ही बोलने का मौका रहेगा कि सिक्योरिटी क्या है। तो सिक्योरिटी के लिए भी वो जो बस है दैट इज़ ओनली फॉर गर्ल्स, एंड देयर आर सो मेनी गर्ल्स हु विल बी गोइंग फ्रॉम दैट विलेज, पर्टिकुलर विलेज। तो फिर पेरेंट्स को लगता है कि ठीक है, आप दिस इज़ द सिक्योर थिंग, और उसके बाद जाना। क्योंकि अगर 10 पेरेंट्स की बेटियां जा रही हैं तो कोई एक दूसरे को बोलेगा नहीं कि तुम्हारी बेटी तो मतलब
गांव में ऐसे ही कहते हैं कि तुम्हारी बेटी जा रही है कॉलेज, मतलब तुम्हारी बेटी एकदम खराब हो गई और तुम्हें एकदम बिल्कुल से समझ नहीं है कि कैसे बेटियों को आगे बढ़ाएंगे, उसकी शादी में भी प्रॉब्लम आएगी। So, अब तक मैम आई वुड लाइक टू नो योर पर्सपेक्टिव कि जैसे मैम हैज़ ऑलरेडी स्पेसिफाइड कि इट्स ड्यू टू जोग्राफिकल, बहुत डीप इनसाइड जहाँ गवर्नमेंट नहीं पहुँच सकती, जहाँ गवर्नमेंट पहुँच सकती है पर माइंडसेट नहीं बदल सकती। और मैम आपका like what did you find, like why did was it needed the NGOs कि NGOs का change, how did they become the agent for change when there was everything provided so called? Okay. So I fully agree with what Barkha ma'am has said, what Aarti has said. So I'll just add to that. मतलब इन्होंने जो कहा ये पूरा एकदम सही बातें कही है उन्होंने। मुझे इसमें थोड़ा ये ऐड करना है, कभी कभी, हर बार नहीं, NGOs थोड़ा गवर्नमेंट के से थोड़ा अकाउंटेबिलिटी चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेशली जहाँ पे जिस टाइप की बरखा मैम बात कर रही हैं, 40 किलोमीटर दूर है, गढ़चिरौली है, चंद्रपुर के दूर दराज इलाके हैं, तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि उनका कोई उत्तरदायित्व पब्लिक के प्रति नहीं है। उनको बस अपना सुपीरियर ऑफिसर जो है वहाँ देखना है, अपनी ACR ठीक रखनी है बस। तो लोगों का के प्रति भी उनकी कोई उत्तरदायित्व है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, ऐसा उनको नहीं लगता। तो कभी कभी क्या होता है, और ये आप फॉर एग्जांपल आप पटवारी है, वो 7/12 नहीं देगा, फेर फार नहीं करेगा, पैसा लेगा, पुलिस वाले FIR लिखने के लिए पैसा लेंगे, FIR नहीं लिखने के लिए भी पैसा लेंगे, ऐसा बहुत कुछ आप लोगों को मालूम है क्या चल रहा है। हाँ, तो इसके ये जो चीज़ें जिस तरीके से चलती हैं, करप्शन भी है और एक प्रकार की नेग्लिजेंस है, एपथी है कि क्या हो जाएगा हमारा। इसके लिए अगर आपको अकाउंटेबिलिटी अगर तैयार करनी है तो वहाँ पे संगठन और लोगों की मजबूती से एक दूसरे के साथ में खड़े रहना, कलेक्टिवली सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछना, ये फिर एक आप NGO कहीं या संगठन कहीं, इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है मुझे लगता है। तो इट्स लाइक अ ब्रिज कि वहाँ से यहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक। So, ma'am, question for you, ma'am. You can choose not to answer it. Like, you have written a book based on Gandhian values, Yeah. and here you've written a book where you've translated Nitin Gadkari's perspective. Huh. So I feel we should not look at it superficially. We should look at it that you are from the community side. Yeah. You are from the community perspective, not yes. from the Gandhian perspective, Okay. not from the other than Gandhian perspective. You are from the community perspective. So would you like to tell us that how any social leader who is an agent of change has something in common, and what is it that causes all the youngsters to look up to a leader, and what should they develop in their hearts to become that? अच्छा, सो व्हाट आई से इज़ कि जैसे यहाँ इतने लोग बैठे हैं, यंग स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, और मैं आपको बता भी नहीं सकती आप लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं। आप इस वक्त आपस में बातें कर रहे होंगे, कुछ सो भी रहे हैं एयर कंडीशन में बैठकर, लेकिन यू हैव नो आइडिया कि आप कितने प्रिविलेज्ड हैं कि आपको ये सब फ्री में मिल रहा है, बिना कोई, फ्री इन द सेंस बिना कोई फिजिकल एफर्ट करे हुए मिल रहा है। तो आप ये देखिए कि जो लोग जो काम करने गए, गांव में गए, वो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं। मैम उस परिवार से आती हैं, वो कहीं भी लॉस एंजलिस में या हार्ले स्ट्रीट लंदन में या कहीं भी हो सकते थे, वो कहीं पर भी जाकर, मैम को इतने फेलोशिप्स मिले हैं, आरती इतनी एजुकेटेड है, ये लोग कहीं भी जा सकते थे फॉरेन कंट्री में, पर इन्होंने अपनी कंट्री का जो सबसे बैकवर्ड एरिया है वो सेलेक्ट करा, और वहाँ पर जो सबसे अंडर प्रिविलेज्ड है, लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑन द सोशल लैडर, उसको सेलेक्ट करा, उसके लिए काम करने के लिए सेलेक्ट, उन्होंने अपना जीवन डेडिकेट किया। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती है ना। तो मैं कम्युनिटी से हूँ, और मैं उससे भी ज़्यादा, द रीज़न आई एम सो न्यूट्रल इज़ बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनली अ जर्नलिस्ट। मेरा काम सिर्फ देखना और लिखना है, बाकी उसमें से आप अच्छाई देखते हो या बुराई देखते हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन गांधी को फॉलो करने वाले मैंने ऐसे 7 लोग देखे जो who live by Gandhi,
वो उनको आप मारिए, पीटिए, जेल में डाल दीजिए। वो मैं आपको बताती हूँ, डॉक्टर सातव ऐसे हैं, वो कहते हैं कि मैं इस बात को मानता हूँ कि सच, ट्रुथ कैन गेट ट्रबल्ड बट इट कैन नेवर गेट डिफीटेड। दैट इज ए सेइंग बाय गांधी जी, कि झूठ विचलित हो सकता है पर सच विचलित हो सकता है पर हार नहीं सकता कभी भी। तो आप देखिए, डॉक्टर कोले वो कहते हैं गांधी इज एवरीथिंग फॉर मी। गांधी ने मुझे जो सिखाया, एक बार उनके घर में गुंडे गए रात में उनको पीटने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पर ये काम कर रहे थे, बदलने का, डिस्पेंसरियाँ खुलवाने की बात कर रहे थे। तो चिढ़ गया सरपंच वहाँ का, उसने कुछ गुंडे भेजे उनको पीटने के लिए। वो गुंडे उनको रात भर उनके घर के बाहर बैठे गालियाँ देते रहे, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। वो कुर्सी पे बैठे रहे। तो उन्होंने कहा कि वो जो मुझे चिल्ला के गाली दे रहे हैं वो कावर्ड हैं, ऐसा गांधी जी ने कहा है, और अगर मैं रिएक्ट ही नहीं करूँगा, मैं चुप रहूँगा, तो वो मुझसे डर जाएंगे और चले जाएंगे। तो देखिए, वो लोग एक लीडर को मान के चल रहे। गडकरी जी की बात अगर आप कहें तो वो भी कहीं ना कहीं से गांधी से ही निकले हैं, क्योंकि जो इस कंट्री में जो गांधी जी ने एक सोशल सर्विस का जो फाउंडेशंस डाली, जो नींव रखा, that it has all come from Gandhi, and every leader in the public domain, whether they are working as politicians or whether they are working in the social sector, they are all inspired by Gandhi. I personally feel that, you know. So I don't know how, if it will be politically correct to say something, but I would just say that be inspired by the heart and by the will, that everyone deserves to be happy and to have a fair chance at life. Yeah, so and that's the only thing. They are serving the people basically. Now, Mr. Gadkari has contested elections. He's a politician, he's a minister. That is his way of serving the society. Dr. Kole, Dr. Satav, the Amtes, the Bungs, you know, they have foregone all these things. उनको ये trappings नहीं चाहिए, वो बिल्कुल शुद्ध सेवा करते हैं जाकर। ये फ़र्क है दोनों का। आप इस फ़र्क को कैसे भी देख सकते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है। They are serving, as you and me are also serving this society. Ma'am, for you, I was wanting to know that you were telling us about how violence was a major issue, and how even for like female infanticide and feticide is a big thing, but even class mein thappad marna is considered very aam baat at places where you work. So how have you dealt with that? Yes, it's very true that whenever, even in our evaluations, whenever the researcher asked question to the students कि आपको पता है कि वायलेंस क्या होता है, या हम भी जब क्लास में जाते हैं, जो ब्रेक थ्रू का तारों की टोली हमारा एक टूल किट है जो जेंडर और डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, ये सारे चीज़ों को टारगेट करता है विथ लाइफ स्किल्स, बहुत तरीके के लाइफ स्किल्स के साथ, जो कि जैसे नेगोशिएशन, कोलैबोरेशन, लीडरशिप, ये सारी क्वालिटीज़ उनमें आती है। तो जब भी हम उनसे पूछते हैं, पहले क्लास में अगर हम जाते हैं, हम पूछते हैं, वो कहते हैं हाँ, टीचर अगर मारेंगे नहीं तो फिर हम लोग कैसे सुधरेंगे। इवन टीचर सेज कि हम अगर इनको स्ट्रिक्ट बिहेव नहीं करेंगे तो मैडम ये सब तो फिर स्कूल से बाहर ही चले जाएंगे। तो इवन स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि अगर मेरे पापा मम्मी मुझे पिटाई कर रहे हैं, डैट इज़ वेरी नॉर्मल, और वो मेरे लिए ही कर रहे हैं। अगर पापा भी मम्मी को मारते हैं तो वो भी ठीक है, क्योंकि मम्मी कुछ तो गलती करती ही रहती है, सब्ज़ी ख़राब बना देती है या बिना पूछे बाहर चली जाती है। तो इस तरीके के कॉन्वर्सेशंस एकदम बहुत जनरल आते हैं, और फिर उसके लिए फिर जब हम उनके साथ हर 15 डेज़ पे इंगेज होते हैं कि क्या है वायलेंस, कितने तरीके के वायलेंस होते हैं और ये वायलेंस है कि नहीं, तब जाके उन्हें समझ में आता है कि एक्चुअली में ये वायलेंस है, और मैं हर दिन इसको क्योंकि देख रहा हूँ बचपन से, तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये क्यों ये हिंसा है। तो इस तरीके की चीज़ें जब आती हैं तो बहुत टाइम में ऐसा भी होता है कि, और वायलेंस के ज़्यादातर हम जो हमारा जो तारों की टोली है वो 15 to 18 एज ग्रुप में ही करते हैं। उससे पहले जो हमारा 11 to 14 एज ग्रुप होता है उनके साथ हम डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा फोकस्ड वे में करते हैं, क्योंकि
वही वो टाइम होता है जब वो डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं। अगर मैं भी अपने बारे में बताऊं कि मैंने डिस्क्रिमिनेशन कब मतलब एक्सपीरियंस किया, फेस नहीं एक्सपीरियंस किया, तो वो जब मेरा टीनेज था कि मेरे भाइयों को शुरू से ही बोला गया तुम इंजीनियरिंग करो, आईआईटी करो, मुझे बोला गया तुम कुछ भी कर लो। तो डैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कि मुझे शायद शादी के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था कि अगर अच्छा से ग्रेजुएशन करोगी देन यू कैन गेट अ वेरी गुड बॉय फॉर मैरिज। तो मुझे ये लगता है कि वहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तब जाके जब वो 12th के बाद पार करते हैं, और एटलीस्ट हम 2 साल के लिए एक एडोलेसेंट को साथ में रखते हैं हर 15 डेज़ पे, और उनके साथ साथ ना सिर्फ स्कूल में, उनके कम्युनिटी में भी उनके साथ काम करते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ काम करते हैं, जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं जो कि जिनका गांव में एक स्टेक है, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स का है, आशा ANM का है, क्योंकि वो लोग कन्विंस करने में बहुत मदद करते हैं उनके पेरेंट्स को, एंड दे आर पार्ट ऑफ डैट कम्युनिटी। तो उन सभी लोगों के साथ काम करते हैं। तब जाके 2 साल के बाद आज के दिन में कितने सारे ऐसी शेयरिंग्स होती हैं जब एडोलेसेंट बोलते बोलते रुक जाता है कि मेरे साथ कितना वायलेंस हुआ है स्कूल में भी, घर में भी, और मैंने कितना देखा है, और उसकी वजह से भी मेरा आज के दिन में ये स्थिति है कि बहुत सारे यूथ भी शेयर करते हैं कि मेरा जो है मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो रहा है इसका। तो वो सारी चीज़ें जब तक हम समझ नहीं पाते हैं तब तक हमें नॉर्मल लगता है, क्योंकि हम उसी परिवेश में पल रहे होते हैं, उसी परिवेश में हमारा सारा कुछ चल रहा होता है। और जैसे ही हमें अवेयरनेस आती है कि क्या है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, किस तरीके से ये होता है, तब जाके फिर वो समझ में पूरी तरीके से आना शुरू हो जाता है, और फिर हम उसके लिए फिर सोचना शुरू करते हैं, नेगोशिएट करना शुरू करते हैं और एक्शन भी लेते हैं। Ma'am, just short, I know we are running out of time. Just in short, ma'am, what are the issues you are dealing with and your contemporaries abroad are dealing with? NGO कहीं भी हो सकता है, क्या इंडिया में इतनी भी अलग है ह्यूमैनिटी के प्रॉब्लम्स? या मैम, because you have been within the rural areas of Okay, India, yes, I do and you have had have, fellowships from and See, my perspectives. fellowships only were very brief and very time bound. But ma'am, it was a perspective, a worldwide but perspective. I don't have any colleagues or anything, any contemporaries abroad with whom I'm very much in touch with like that. So very briefly, right now I'm working on land rights, forest rights, financial inclusion of Adivasi communities in Chandrapur. Just one sentence. As far as I think people abroad are concerned, जो आपने पहला सवाल पूछा था कि हर स्टेट अलग है, वैसा हर कंट्री अलग है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो पैलेस्टाइन और इज़राइल में हो रहा है, तो वहाँ के NGOs क्या कर रही होंगे आप समझ सकती हैं। यूक्रेन में क्या हो रहा होगा आप समझ सकती हैं। US में ब्लैक लाइव्स मैटर शुरू है, वहाँ पे इतने दिनों से there is a fight for the equal rights of African Americans in America. It's still going on. So every country has its own civil society space, but I would like to just add one very small thing. We are very blessed in India that at least अभी तक तो कितना भी restricted हो गया है, फिर भी civil society को space है। बहुत सारे ऐसे countries हैं जिनको civil society को कोई space ही नहीं है। They are by law, they are not allowed to function outside the government sphere. By law. Like China doesn't have like a civil society space, you know. Or there are many other countries that जितना flourishing civil society space हम इंडिया में अभी तक तो हमने थोड़ा enjoy किया। अभी मुझे लगता है थोड़ा restricted हुआ है पहले से, but still it is still there. Yeah. Ma'am, just in a sentence if possible, what are the challenges in the sports area which you have to deal with time and again because you're working with them as an NGO? And then we wrap up. That will be the last question. Sorry. So, the sports era, I think the question has come at a wrong time because India is doing extremely well in sports. But I work with the underprivileged children, so I know it begins with, not having shoes. Then sports is a very, very expensive activity. So sponsorships are very, very difficult. And individual sports में उनको डाल सकते हैं तो एथलेटिक्स से ऊपर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि किटी इतने महंगे होते हैं अगर टेनिस कराएं या कुछ और कराएं ट्रेनिंग तो आप देखिए कि इवन नेशनल चैंपियन स्ट्रगल फॉर मनी एंड स्पॉन्सरशिप सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अंडर प्रिविलेज्ड